ਸਤਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਡੈਬਿਟ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਰਸਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ, ਕਿਆ ਜੀ ਡੈਬਿਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਦੀ ਰਿਸੀਵਰ, ਠੀਕ ਨਾ, ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗਿਫਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਡੈਬਿਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਬੇਟਾ DR ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ ਡੈਬਿਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵਾਟ ਕਮਸ ਇਨ। ਠੀਕ ਨਾ, ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਡੈਬਿਟ। ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ, ਕਿਆ ਜੀ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਠੀਕ ਨਾ, ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਨਾ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਲੀਅਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਤੇ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਨਕਮ। ਠੀਕ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਠੀਕ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਜਿਸ ਪੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਪੇਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੇਜਿਸ ਪੇਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਵੇਜਿਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 500। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੇਜਿਸ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੈਸ਼। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੇਜਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਜਿਸ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਥੋੜੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆ। ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਜਿਸ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੈਲਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਜੀ ਸੈਲਰੀ। ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਥੋੜੀ ਸਕਦੇ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਟੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੋਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਨੋਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੋਸ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੋਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼। ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਡੈਬਿਟ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਦੀਆਂ ਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟੂ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ।
ठीक ना बेटा जिदा रेंट वा ना रेंट इनकम भी हो सकता प्रॉफिट भी हो सकता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਇਨਕਮ ਆ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਜੇ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪੇਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਠੀਕ ਨਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸੀਵਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਰਿਸੀਵਡ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰੈਂਟ ਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਜੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਡ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਜੀ ਪੇਡ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋਣੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 500 ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ 500 ਪੇਡ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ 500 ਬੇਟਾ ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆਣੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਡ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜੀ ਰੈਂਟ ਕੀ ਆ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜੇ ਬੇਟਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੈਬਿਟ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆਣੀ ਆ ਜੀ रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना जी 500 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ठीक है जी और इसी तरह बेटा जे मतलब यही साडे कोल लिखिया हुंदा जी रेंट रिसीव्ड कितना जी 500 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਨਕਮ ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇਨਕਮ ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇਨਕਮ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 500 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ सैलरी पेड कितनी है जी 1000 सैलरी पेड आ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪੇਡ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਣੀ ਆ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਡੈਬਿਟ ਵੀ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ 1000 ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਕਮ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਡੈਬਿਟ ਠੀਕ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਡ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੇਡ ਆਣਾ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਟਾ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਆਣਾ ਜਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਵਾ ਨਾ ਪੇਡ ਆ ਰੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੇਡ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਕੀ ਆਣਾ ਜੀ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਰੀ ਪੇਡ ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ सैलरी पेड जे मतलब सैलरी पेड आ तो सैलरी को डेबिट टू की आना कैश ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਵੀ पेड आ गया ਤੁਹਾਡਾ टू कैश आना ही आना है ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਰਿਸੀਵਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡੈਬਿਟ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਡੈਬਿਟ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵਡ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट ठीक है ना जे मतलब मैं इधर लिख देना क्या जी रिसीव्ड कमीशन कितना है जी 1000 ਇਹਦਾ मतलब रिसीव्ड आ गया ना तो कैश अकाउंट की आना जी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन कितना जी 1000 यानी कि ਜਦੋਂ ਵੀ रिसीव्ड आ गया कैश अकाउंट की आना जी डेबिट
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਨਾਲ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਮਲਤ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਆ ਕਰਿਓ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਜੀ ਰਾਮ started business with cash कितना जी 10,000। कितना जी 10,000। राम ने बिजनेस शुरू किया किन्ने ना जी कैश ना 10,000। बेटा जदों भी बिजनेस शुरू करना जिहड़ी चीज़ ने शुरू करना ਇਹਦਾ मतलब वो चीज़ बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ आ रही है। कैश ना शुरू किया तो एंट्री की आनी है कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। किहदी है जी राम दी कैपिटल कितनी है जी 10,000, ठीक है ना। जे मतलब मैं यही कह देना है फॉर एग्जाम्पल क्या जी राम स्टार्टड बिजनेस विद क्या कहते हैं आप फर्नीचर कितना जी 15,000। यदि एंट्री के फर्नीचर का शुरू किया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। किन्ने ना जी 15,000। यानी कि जेड़ी चीज़ ना बिजनेस शुरू करना है वो असी की करनी हैगी है जी डेबिट, वो असी की करनी हैगी है जी डेबिट, ठीक है ना। और प्लस जी जेड़ी ਉਹ ਬਣਨੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਆਣਾ ਜੀ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट कितना है जी 15, ठीक है। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪਰਫੋਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਨਾ। ਕੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਜੀ ਪਰਫੋਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ एंट्रियां लैके दसदा है, ठीक है 3-4 फिर दस दो किद्दां लिखना है, ठीक है ना। जिद्दां मान लो फॉर एग्जाम्पल आ साडे कोल एंट्रियां हैगियां जी आ वालियां बेटा। जिद्दां पहली एंट्री हैगी आ रवि स्टार्टड बिजनेस विद कैश कितना है जी 10,000, ठीक है। फिर जी दूजे नंबर ते गुड्स परचेज फ्रॉम राम कितना है जी 1,000। तीजे नंबर ते जी गुड्स सोल्ड फॉर कैश कितना जी 5,000, ठीक है। उस तो अगे जे है साढ़े को सैलरी पेड कितना है जी 1,500, सैलरी पेड 1,500, ठीक है ना। हम मान लो साढ़े को 4 एंट्रियां इन्हें आप किद्दां पाना, ठीक है ना। पहले नंबर ते बेटा जनरल एंट्रीज का तुसीं परफॉर्मा बनना, ठीक है ना। स्केल दे नाल तुसीं पूरा परफॉर्मा बना के करना है, ठीक है ना। किद्दां जी जनरल, ठीक है बेटा। की करना
इस तरह स्केल के नाल तुसीं लाइन मार ली जी। ठीक है, ये खाना बन जाना तुहाडा डेट वाला, एक ही बन जाना तुहाडा डेट वाला। ठीक है, तो उस तो बाद अगे बेटा, उस तो बाद अगे तुसीं इस तो घट्टो घट्ट ज़्यादा आपां गैप देना, घट्टो घट्ट इस तो 3 गुणा दे देना, 1 2 3। ठीक है, आप दे देना सी इस तरह। आ देखो जी, ठीक है, इदा परफॉर्मे दे विच एंट्रियां पाणियां तुसीं। आ वाली लाइन बिल्कुल छोटी लानी तुसीं। ठीक है, फिर अगे जी जिन्ना डेट नूं गैप दिता सी उन्ना ही फेर। ठीक है, तो अगे फेर होई जी जिहड़ा हैगा साडा। ठीक है ना, हुण बेटा देख लो ना भी लिखना की। ठीक है, जिहड़ा तुहाडा आ वाला कॉलम होना इह च लिखना हैगा तुसीं डेट। ठीक है, इत्थे बेटा इत्थे लिखना हैगा तुसीं पार्टिकुलर। ठीक है ना, की लिखना जी आपां इत्थे पार्टिकुलर। ठीक है, पार्टिकुलर से मतलब जो भी आपां एंट्री पानी होनी, जिहड़ी चीज़ लिखनी होनी आपां इहदे विच लिखनी। ठीक है, इत्थे लिखना बेटा तुसीं लेजर फोलियो LF पा देना। की पा देना LF। ठीक है, तो आ बेटा तुहाडे कोल डेबिट होना, तो आ वाला खाना की होना क्रेडिट। ये वाला की होना हमेशा एक डेबिट एक क्रेडिट होना। ठीक है ना, हुण जिद्दां बेटा मानो पहली सीगी, जिद्दां मैंने चलो डेटा जिहड़ियां आपां एंट्रियां पाईयां है ना, इन्हां डेटा दे दित्ता मैं। ठीक है ना, डेटा किद्दां जी, मान लो इस तरह आ साडे कोल हो गई 1 जनवरी दी। ठीक है, 2020 दी, आ 2 जनवरी 2020, 3 जनवरी 2020, तो आ 4 जनवरी 2020, मतलब डेट है भाई साहब है। ठीक है ना, हुण पहली एंट्री देखो, पहली एंट्री हैगी 1 जनवरी 2020 दी। ਅਸੀਂ ਜੇ डेट नहीं दी हो एंट्री दी हो पहली दूजी तीजी, फिर इत्थे पहले दूजे दे देना। जिद्दां पहली है साडे कोल 1 जनवरी किहड़ा जी, सारी 2020 दी एंट्रियां है 1 जनवरी 2020। ठीक ना, एंट्री क्या, रवि स्टार्टड बिजनेस विद कैश, किन्ना जी 10,000। रवि ने बिजनेस शुरू किया किन्ने ना जी 10,000 कैश ना। तो बेटा साडी एंट्री क्या नहीं इस तरह लिख लो, ध्यान नाल लिख लो किद्दां पानी। असीं पाना कैश नाल शुरू किया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। बेटा थोड़ा जिहा गैप दे के टू रवीज कैपिटल, टू रवीज कैपिटल। ठीक है ना, देखो बेटा किन्ने ने 10,000 ने शुरू किया। आ देखो कैश अकाउंट डेबिट लिखिया ना। ठीक है ना, डेबिट डी आना, तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट है, तो आप ये सामने इसे लाइन दे विच डेबिट वाले च 10,000 पा देना। ठीक है ना, टू रवीस अकाउंट कैपिटल वा, ये क्या जी साडे कोल क्रेडिट आ, ये असीं इत्थे पा देना क्रेडिट वाला 10,000। बस इन्ना याद रखना बेटा, जिहड़ी आ लाइन बनाई है ना ये मोहरे ही लिखना। ये नहीं हैगा लिख दिता कैश अकाउंट डेबिट तुसीं इत्थे ते 10,000 लिख दो किसी उपर थल्ले, नहीं, इस लाइन दे विच ही लिखना। कैश अकाउंट डेबिट किन्ना 10,000, टू रवीस कैपिटल अकाउंट किन्ना जी क्रेडिट सीगा ये क्रेडिट ये सामने किन्ना जी 10,000। ठीक है ना, तो बेटा असीं एक नाल नरेशन लिखी दी हुंदी है इत्थे। नरेशन का मतलब हुंदा कि जिवें हम बंदे ने बुक्स चैक करनी उन्हें आह चीज़ थोड़ी देखने जाना है, हुण तां कलियां एंट्रियां देखनियां, जाने कि सानूं पता लग जाए एंट्री काहदी है। ठीक है ना, ये तुसीं शॉर्टकट में लिख देना, जिद्दां एंट्री काहदी है जी स्टार्टर बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री है शॉर्टकट दे विच। ठीक है, हुण बेटा पहली एंट्री पूरी हो गई, चलो जी। ठीक है, लाइन चाहे मारो चाहे ना मारो वो कोई फर्क नहीं। उस तो बाद एक लाइन छड्ड के अगली 2 जनवरी दी है, 2 जनवरी वो एंट्री की है गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम तो गुड्स परचेज की है ना। हुण इहदी एंट्री तुहानूं दस्सिया आ गुड्स परचेज फ्रॉम राम की एंट्री की हुंदी आ। हुण गुड्स साडे राम तो परचेज की, राम की हो गया जी गिवर, राम ने चीज़ें देनियां है ना करके उत्ते आपां परचेज कर लईआं है ना। तो एंट्री की आनी है साडे कोल परचेज गुड्स कीतियां, तो एंट्री आनी बेटा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है ना, इदा माड़ा जिहा थोड़ा जिहा गैप दे के लिखना क्रेडिट वाली एंट्री टू राम अकाउंट। किन्नी दियां परचेज कीतियां बेटा 1,000 दियां, आ डेबिट लिखिया सी
ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ 1000 ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ 1000, ਠੀਕ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਬੀਂਗ ਪਾ ਕੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਕਾਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ? ਗੁड्स परचेज, गुड्स परचेज की है बस ये एंट्री पै गई, ठीक है ना। अगे 3 जनवरी की आ एंट्री तो बाद तो एक लाइन छड्ड के फिर आ गया 3 जनवरी, 3 जनवरी की वो एंट्री की आ गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश लिए गुड्स बेचियां ने तो मतलब कैश आना है तो की आने गुड्स सेल हुई हैं तो एंट्री की आऊँगी जी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अकाउंट बेटा मैं शॉर्टकट लिखदा A/C, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वही है बेटा किन्ने दी 5000 दी आ कैश अकाउंट दे विच, डेबिट वाले डेबिट है ना, डेबिट वाले खाने 5000, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट आ ये मूहरे इदा 5000। यानी कि जिस लाइन च लिखते पे हो उस लाइन च ही तुसी लिखना, ठीक ना। तो जिहड़ी इहदी नरेशन आनी है शॉर्टकट दे विच की आ जाना जी गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड हुई, ठीक है ना। अगे बेटा जिदा फिर आ जाना एक लाइन छड्ड के फिर आ गया जी 4 जनवरी, ठीक है ना। ये की है जी सैलरी पेड, सैलरी पेड किन्नी है जी 1500 आ, ये सैलरी पेड आ। हुण देखो पेड आ गया ना तो टू कैश आना, तुहानूं दस्सिआ मैं। तो सैलरी की हो गया एक्सपेंसिस, एक्सपेंसिस तो असीं की करनी है इहनूं डेबिट, तो एंट्री की आनी है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना सी बेटा 1500, डेबिट वाले भी 1500 क्रेडिट वाले भी 1500। बीइंग बेटा दो ही शॉर्टकट दे लिख दो क्या आया जी कादी सैलरी है, एंट्री कादी है सैलरी पेड हुई हो, ठीक है ना। 4 एंट्रियां पातियां बेटा, जदों एंट्रियां पातियां ठीक है ना, सारी एंट्रियां खत्म हो गई ना तो तुसीं एक काम करना इत्थे टोटल कर देना डेबिट वाले का भी क्रेडिट वाले का, और दोनों हमेशा बराबर आने चाहिए, दोनों हमेशा की आनी चाहिए बराबर। जो 10,000 तो 1,000 11,000, 11 तो 5 16,000, 16 तो 1 17,500, देखो इधरला 17,500 आया तो इधरला भी 17,500, ठीक है ना बेटा। जिन्ना डेबिट हुंदा उन्ना ही हमेशा की हुंदा जी क्रेडिट हुंदा, ठीक है ना। ये बेटा सिर मैं तुहानूं इन्ना दस्सिआ आ कि फॉर एग्जाम्पल कि तुसीं एंट्रियां किद्दां पाणियां, आ परफॉर्मा बनाना डेट इस तो घट्टो घट्ट 3 गुणा जगह छड्ड लैनी, फिर लेजर फोलियो कुछ नहीं आना बस लिखी तो होंदा, ठीक है ना। फिर डेबिट फिर क्या जी क्रेडिट, इन्हां में तो कल्ली अमाउंट लिखनी आ, तुसीं उस हिसाब नाल थोड़ा थोड़ा थां छड्ड सकते हो, जिन्नी की डेट लिखाना है लेंथ आह वाली चौड़ाई रखी है उन्नी की इन्हां दी रख के, बाकी इहदी जिहड़ी चौड़ाई होनी घट्टो घट्ट तो 3 गुणा तो रखनी है, ठीक है ना। इदां बेटा एंट्रियां तुसीं लिखनी, ठीक है ना। तुहानूं हुण मैं एक माड़ी जिहा एक टॉपिक समझा के उहदे नाल दे फिर क्वेश्चन देने आ, वो वाले क्वेश्चन तुसीं करने, ठीक है ना। वो वाले क्वेश्चन करके, ठीक है ना, फिर तुसीं मैनूं उहदे आंसर सेंड करने, फिर मैं तुहानूं देखूंगा कि तुहाडी की प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि बेटा पहले तुहानूं प्रॉब्लम आनी है क्योंकि नवीं चीज़ है, ठीक है ना। हुण बेटा देखो पहले नंबर ते जिहड़ियां साडीਆਂ अलग-अलग टॉपिक दे नाल रिलेटेड एंट्रियां हुंदियां आ, ठीक है ना। पहले नंबर ते मैं तुहानूं उही करा दिंदा, पहले नंबर ते किहड़ी है, ठीक है ना। देखो बेटा पहले नंबर ते हैगा साडे कोल जिहड़ा जनरल एंट्री का टाइप आ वो हैगा बेटा कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। पहले नंबर ते जिहड़ियां आपां एंट्रियां पाणियां आ वो किहनां रिलेटेड होणियां जी कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी कि ये देखना कि जिहड़ी ट्रांजैक्शन हुई है जिहड़ा लेन देन होया वो कैश विच होया, ठीक है ना, या फिर क्या जी क्रेडिट विच होया, तुहानूं किद्दां पता लगना, ठीक है ना। तुहानूं किद्दां पता लगना कैश विच आके क्रेडिट विच, ठीक है ना। जिद्दां बेटा हुण मैं कुछ एग्जाम्पल लैना तुहानूं तो अपने आप पता लग जाना, ठीक है ना। जिद्दां पहले नंबर ते आ मैं कह दिंदा आ गुड्स परचेज फ्रॉम रवि कितना है जी 5,000। दूजे नंबर ते गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है कितना है जी
3000। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਗੁड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश 2000। ठीक है। इस तरह बेटा अगे आ चौथी एंट्री किहड़ी है जी, ये गुड्स सोल्ड। ठीक है। गुड्स सोल्ड फॉर कितना है जी 5000। ठीक है। उस तो बाद जी 5वें नंबर ते गुड्स सोल्ड टू मान लो जी मैं लिख देना गुरप्रीत। ठीक है। कितना है जी 2000। या फिर 6वें नंबर ते गुड्स सोल्ड टू बलजीत। ठीक है जी फॉर कैश कितना है जी 3000। आया बेटा साडी एंट्री। ठीक है ना। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਆ, ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਧਾਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਆ, ਉਧਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ डेट वाला कॉलम पहला मानना आप इस तरह मान लेना जी। फिर 3 गुणा छड्ड के जगह। ठीक है जी। फिर जी लेजर फोलियो, फिर जी एक डेबिट। ठीक है। तो एक क्या जाना साढ़े कोल जी बाकी जो बच गया वो क्रेडिट कर देना, यानी कि जी डेट पार्टिकुलर। ठीक है। उस तो बाद जी लेजर फोलियो, डेबिट ते क्रेडिट। ठीक है बेटा। एक गल याद रखियो जो तुम दुकान तो करनी है ना, हुण क्रेडिट ते कैश में की मतलब फर्क आ पहले मैं सिंपल जिहा समझा दूँ। ठीक है। देखो मान लो फॉर एग्जांपल तुसी किसी भी शॉप ते जाते हो। ठीक है बेटा। तुसी मान लो उत्थों 5000 का समान खरीदिया, 5000 का मान लो गुड्स परचेज कीतियां है ना। देखो बेटा जे तो तुसीं उन्हां तों कैश खरीदियां, उन्हां तों की खरीदियां जी कैश खरीदियां। मान लो जिहड़ी 5000 दी गुड्स खरीदियां सी कैश, दुकानदार ने तुहातों गुड्स देनी है, तुहातों कैश ले लेना आ, उन्होंने नहीं कोई लोड़ पैंदी कि तुहाडे बारे जानकारी रखी हो, कैश कम होया। जे मतलब यही चीज़ां तुसीं क्रेडिट खरीदियां हो, तुसीं मार्केट भी जाते हो, तुसीं उधार समान खरीदिया किन्ने दा जी 5000 का, तो दुकानदार की करदा वो तुहाडा नाम लिख लैंदा। ठीक है ना। कि मतलब जी रवि आ जी, आ रवि के नाँ ते जी रवि तो मैं इन्ने पैसे लेने, रवि तो इन्ने पैसे लेने। यानी कि बेटा सिंपल जी गल आ, जे कैश सेल परचेज हुई आ ठीक है फिर तो मान लो जे ने चीज़ खरीदी है या बेची है नाम नहीं लिखा जाना। ठीक है ना। करके असीं किहड़ा रिकॉर्ड रखना। जे मान लो क्रेडिट हुई आ फिर सानूं नोट करना पैंदा कि भी फलाने तो इन्ने पैसे लेने आ या फलाने नूं इन्ने पैसे देने। ठीक है ना। जे तुहानूं पहले नंबर ते आ गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, रवि तो गुड्स परचेज कीतियां। देखो बेटा सानू कहा नहीं उन्हें कैश आ या फिर क्या जी कैश नहीं हैगी। ठीक है ना। गुड्स जिदा क्या जी कैश नहीं हैगी। जो कैश होना ना उन्हें बेटा क्या होना कैश क्या जी रवि नूं आपां कैश बेचियां जाए। हुण रवि तो गुड्स परचेज कीतियां ना, ये बस सिंपल कीता परचेज की अपने कहा थोड़ी कि उन्हें कैश देता या नहीं, ये मतलब रवि तो आपां उधार खरीदियां। रवि तो की कीतियां जी उधार। तो एंट्री की आनी है पहली एंट्री है ना, जिदा एंट्री बाद लिखा मैं तो डेट के पहली एंट्री की एंट्री पावे आप परचेज अकाउंट डेबिट टू। बेटा हम कैश थोड़ी गया, असी रवि तो उधार खरीदियां, असी की लिखांगे टू रवि अकाउंट, मतलब रवि नूं आपां इन्ने पैसे देने हैं। किन्ने जी 5000। 5000 आपां की लिख देंगे जी डेबिट, 5000 की लिख देंगे जी क्रेडिट, और यदा की लिख देंगे आपां बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। जिहड़ियां गुड्स परचेज कीतियां काते कीतियां जी आपां क्रेडिट ते। ठीक है ना। और इस तरह जो हम कि गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश परचेज कीतियां तो असीं कि सीधा लिख देंगे क्या जी एक लाइन छड्ड के फिर एंट्री पावांगे परचेज अकाउंट डेबिट टू। हुण तां कैश आ मतलब परचेज गुड्स आ गई साढ़े कोल कैश क्या जी
चल गया कितना जी 3000 ठीक है ना। और ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਬੀਇੰਗ गुड्स परचेज फॉर कैश क्या जी गुड्स परचेज फॉर कैश ठीक है 3000 उस तो अगे की लिखा उन्हें गुड्स परचेज फ्रॉम राम देखो उन्हें पहले कहता राम तो परचेज गुड्स की पर नाल उन्हें लिख दिता फॉर कैश ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁड्स परचेज ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ परचेज अकाउंट डेबिट ठीक है जी टू कैश अकाउंट क्या जी टू कैश अकाउंट कितना है जी 2000 डेबिट ठीक ना जो नाल लिख दिता कैश परचेज आ भाई फिर कैश बनी आप एंट्री तो एंट्री की आ जानी है जी बीइंग की पता है जी गुड्स परचेज फॉर कैश अपना ठीक है ना उस तो बाद बेटा अगे साढ़े को थर्ड तो बाद फोर्थ नरेशन में बेटा शॉर्टकट लिख देना कादी एंट्री पाई है ठीक है ना अगे है गुड्स सोल्ड फॉर कैश गुड्स सोल्ड फॉर कैश यानी कि गुड्स ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब सोल्ड कीतियां कादी कीतियां जी कैश ਲਈ ठीक ना ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एंट्री आनी आ कैश है ना कैश आया आ गुड्स ਆਪਾਂ की सेल हो गई तो एंट्री बेटा आ जानी हैगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किन्ना जी जिन्ने दी सेल हुई किन्ने दी हुई जी 5000 डेबिट 5000 क्रेडिट और बेटा एंट्री की बात नहीं आप नरेशन दे सॉरी कैश सेल यानी कि किहड़ी हुई है जी कैश सेल ठीक है ना इधर बेटा 5वें नंबर से फिर अगे एंट्री साढ़े को एक लाइन छड्ड के फिर अगे क्या है जी गुड्स सोल्ड टू गुरप्रीत 2000 गुरप्रीत ਨੂੰ ਗੁड्स ਵੇਚੀਆਂ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਥੋੜੀ ਕੈਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗੁड्स ਵੇਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਗੁड्स ਸੋਲਡ ਟੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਉਧਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕਾਦੇ ਜੀ ਸੇਲ ਦੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ टू सेल्स अकाउंट कितना बेटा 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट ठीक है ना वही बेटा एंट्री किया नरेशन किया जानी है जी गुड्स सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ठीक है ना अगला है गुड्स सोल्ड टू बलजीत फॉर कैश उन्हें कहता बलजीत नूं गुड्स वेचियां की वेचियां जी कैश की बेचियां जी कैश इसका मतलब क्या जी ये कैश वाली एंट्री पाऊंगी की आऊंगी जी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किन्ने दियां जी 3000 डेबिट 3000 क्रेडिट की है जी 3000 डेबिट 3000 क्रेडिट ठीक है ना बाकी वही है जी नरेशन हुई फिर क्या है जी गुड्स सोल्ड फॉर कैश और बेटा जी फिर इन टोटल कर देना इधरला टोटल कर देना 5 3 8 8 से 10 10 वाले 15 15 तो 17 17 3 20000 इधरला जोड़ा जाना 20 यानी कि अपने जोड़ साढ़े एंड भी बराबर रहना चाहिए ठीक है ना ये बेटा हम थानू मैं एंट्रियां पा के दस दित्तियां हैं ठीक है ना हुण तुसीं सिर्फ कैश ते क्रेडिट वालियां थानू मैं एंट्रियां देणियां तुसीं ओही पा ठीक है ना देखो बेटा इत्थे भी वही चीज़ हुई है थानू मैं पहला कहता थी परचेज गुड्स फ्रॉम रवि आ रवि तो परचेज कीतियां रवि क्या हो गया जी गिवर हो गया देने वाला तो एंट्री की बात परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि ठीक है ना कैश परचेज की ये मतलब कि कैश पैना एक परचेज पैना परचेज वाला तो डेबिट हो गया कैश सातों की है जी जा रहा आ तो कैश अकाउंट क्रेडिट ठीक ना तुम मैं कहा ना कि जो तुम आह वाली चीज़ के हिसाब से एंट्रियां प्रिंसीपल भी नहीं सोचे सोचे अपने आप एंट्रियां पाई जानियां तुसीं सिर्फ हुण तुहानूं मैं कैश ते क्रेडिट नाल दियां ट्रांजैक्शन नाल दियां एंट्रियां देणियां आ तुसीं उहदे उत्ते बिल्कुल अपनी कापी ते दा परफॉर्मा बना के उन्हां नूं सोल्व करके ठीक ना तुसीं मैनूं सेंड कर देनी है ठीक ना बेटा फिर मैं देख लूँगा तुहानूं समझ लगदा है जे नहीं लगदा हैगा मैं दोबारा समझा दूँगा ठीक ना पर करने जरूर है हुण तुसीं हुण पहलां मैनूं क्वेश्चन करके ये ठीक ना मैनूं सेंड कर देना ठीक है ना चाहे मैं तुहानूं वध तो वध चलो 2 क्वेश्चन ही दूँगा कितने दूँगा जी
2 ਤੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਦਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਨਾ। 3 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕਸ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕਸ।